Hello students, welcome to Sarvsys classes. My name is Ashmita and in today's class we are going to discuss about the RRB NTPC examination for the year 2022. RRB NTPC का मतलब है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड NTPC एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इटसेल्फ, दैट इज द RRB, to recruit the candidates for various posts in the non-technical categories in the Indian Railways. The RRB NTPC examination is conducted by the Railway Recruitment Board, that is the RRB, to recruit candidates for various posts in the non-technical categories in the Indian Railways. कैंडिडेट्स जिन्होंने क्लास 12 का एग्जामिनेशन पास किए हैं या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इन दिस RRB NTPC एग्जामिनेशन. RRB NTPC 2022 examination is conducted in 4 stages: CBT 1, CBT 2, टाइपिंग स्किल टेस्ट या फिर जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, एंड फाइनल राउंड इज द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड. The syllabus of the RRB NTPC is generally based on class 10, 12 and graduation levels, and the examination is conducted in over almost 15 languages. ये एग्जामिनेशन नेशनल लेवल का है, मतलब ऑल इंडिया बेस्ड एग्जामिनेशन है, एंड द मोड ऑफ एप्लीकेशन इज ऑनलाइन. Application fees for the general category is ₹500, and for the SC/ST category, for the ex-servicemen, for women, minorities, physically handicapped candidates, it's ₹250. The examination mode is online, that is CBT mode, that is computer based examination, and the examination duration is 2 hours. एग्जाम के कैटेगरी मतलब कौन से पोजीशंस के लिए या फिर कौन से कैटेगरी के पोजीशंस के लिए आपको ये एग्जामिनेशन देना पड़ेगा. चलिए उसी को लेके थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. मेनली आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट्स के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ग्रेजुएट लेवल पोस्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. Now, as I told you, there would be 4 stages: CBT 1, CBT 2, typing skill test, that is the CBAT, computer based aptitude test, and the final round is the document verification या फिर जिसको हम medical examination कहते हैं उसका round. Let me tell you the official website जिसको आप लोगों को follow करना है for any kind of latest updates, and if you want to know anything regarding this examination, you have to follow this official website only. Now, the official website is indianrailways.gov.in. अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि NTPC का नोटिफिकेशन एक्चुअली क्या है और कब निकलने वाला है, किस तरह से हमें फॉलो करना है और क्या क्या हमें जानना है वहाँ से. Now, RRB NTPC 2022 examination notifications will be released on the official website of the Railway Recruitment Boards of the specific zones. The candidates should visit the official website of the specific RRB board of their zone. जैसे कि ईस्टर्न जोन है, साउथ ईस्टर्न जोन है, वेस्टर्न जोन है, साउथ वेस्टर्न जोन है, नॉर्दर्न जोन है. तो जो कैटेगरी में आप जिस जोन में आप लोग रह रहे हैं उसी जोन को आप सिलेक्ट कीजिए थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट. RRB NTPC 2022 का नोटिफिकेशन निकलने वाला है इन द मंथ ऑफ February 2022. स्टार्टिंग डेट होगा एप्लीकेशन प्रोसेस का इन द मंथ ऑफ March 2022. Last date to submit your application will be somewhere in March 2022. Last date of application fees submission is in the month of April 2022, and the last date for the final submission of the application will be somewhere in the month of April 2022. आप लोगों को एडमिट कार्ड मिलेगा in the month of December 2022, and CBT 1 का एग्जामिनेशन भी होगा in the month of December 2022. नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन से पोस्ट्स आप लोगों को मिलेगा और कितने वैकेंसीज है फॉर द ईयर 2022. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है जहाँ पे आप लोगों को 4300 वैकेंसीज मिल रहा है. नेक्स्ट देयर इज़ जूनियर टाइम कीपर जहाँ पे आप लोगों को 11 वैकेंसीज मिल रहा है. नेक्स्ट देर इज़ अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट जहाँ पे आप लोगों को 760 पोस्ट्स का वैकेंसीज़ मिल रहा है. नेक्स्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जहाँ पे आप लोगों को 4940 वैकेंसीज़ मिल रहा है. उसके बाद है ट्रेन्स क्लर्क जहाँ पे आप लोगों को 592 पोस्ट्स मिल रहा है.
सो टोटल मिला के जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 10603 पोस्ट्स 2022 ईयर में आप लोगों को अवेलेबल रहेगा। तो ये अभी हम लोग ग्रेजुएट लेवल के अंदर जो पोस्ट्स है, मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इन सभी पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पहला है ट्रैफिक असिस्टेंट, जहाँ पे आप लोगों को 88 पोस्ट्स मिल रहा है। दूसरा है गुड्स गार्ड, जहाँ पे आप लोगों को 5748 पोस्ट्स मिल रहा है। उसके बाद है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जहाँ पे आप लोगों को 5638 पोस्ट्स मिल रहा है। नेक्स्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जहाँ पे आप लोगों को 2854 पोस्ट्स मिल रहा है। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जहाँ पे आप लोगों को 3147 पोस्ट्स मिल रहा है। उसके बाद है सीनियर टाइम कीपर, जहाँ पे आप लोगों को 6 पोस्ट्स मिल रहा है। उसके बाद है कमर्शियल अप्रेंटिस, जहाँ पे आप लोगों को 259 पोस्ट्स मिल रहा है। उसके बाद है स्टेशन मास्टर, जहाँ पे आप लोगों को 6868 पोस्ट्स मिल रहा है। सो टोटल मिला के 24,605 पोस्ट्स आर देयर फॉर द ग्रेजुएट कैंडिडेट्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन योर नेशनलिटी। पहले तो आपको एक इंडियन सिटीजन होना है फॉर अप्लाइंग टू दिस एग्जामिनेशन। यू कैन ऑल्सो बी अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान। यू कैन ऑल्सो बी अ टिबेटन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया before 1st January 1962 to permanently settle in India. You can also be a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, East African countries of Kenya, Uganda, then the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia, Vietnam. But to permanently settle in India can also apply in this examination. Now let us talk about the age limit. Now candidates who are applying to this examination for the undergraduate level posts, that is candidates who have passed class 12th examination and they are applying for the undergraduate posts, they should be between the age of 18 to 30 years, and candidates who are applying for the graduate level posts must be between 18 years to 33 years of age. The Railway Recruitment Board, that is the RRB, offers relaxation to the candidates belonging to the reserved categories as per the government norms. Now for the OBC non-creamy layer, that is the NCL layer, there is a relaxation up to 3 years. For the SC/ST category, there is a relaxation up to 5 years. For the PWD unreserved categories, there is a relaxation of 10 years. For the PWD OBC NCL category, there is a relaxation for 13 years. For the PWD SC/ST category, there is a relaxation of 15 years. नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन से पोस्ट्स के लिए कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। तो पहला जो पोस्ट है वो है कमर्शियल अप्रेंटिस का, एंड कोई भी डिग्री आप सिक्योर कर सकते हैं किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। वो ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, ये कंपलसरी है। दूसरा है स्टेशन मास्टर का पोस्ट, जहाँ पे वंस अगेन यू कैन हैव अ डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी बट दैट शुड बी रिकग्नाइज्ड, and you can have that graduation degree in any subject. The next one is goods guard, and once again here the minimum educational qualification is having a degree from a recognized university or any kind of equivalent degree in any subject. The next post is of junior accounts assistant cum typist. Here you have to have a degree from a recognized university in any subject, एंड आपका टाइपिंग प्रोफिशिएंसी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। कंप्यूटर में, मतलब कंप्यूटर में आप इंग्लिश हो या हिंदी हो, टाइपिंग एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट इज सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, and if you want to apply for this post you should be having a minimum graduation degree from any recognized university in any subject. If you want to apply for the senior timekeeper, then you have to have a degree from a recognized university, and you should be having a typing proficiency in English or in Hindi in the computer, which is essential for this post.
Next है traffic assistant का post, and here you have to have a degree. If you want to apply here, you have to have a degree from a recognized university or equivalent. That is, in any subject you can complete your graduation and then only you can apply to traffic assistant post. If you want to apply for the post of commercial ticket clerk, then you should be completing your class 12th examination or any equivalent examination with not less than 50% marks in the aggregate, and 50% marks are not to be insisted upon in case of SC/ST or persons with benchmark disability or ex-servicemen and candidates who possess qualification higher than 12th. दैट इज़ अगर कोई कैंडिडेट कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं एंड अगर उनके पास कुछ और भी डिग्री है अपार्ट फ्रॉम पासिंग क्लास 12, देन दे डू नॉट हैव टू see to the marks, that is the 50% marks which is written for the minimum educational qualification. अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है या फिर कोई और भी डिग्री है अपार्ट फ्रॉम क्लास 12, लाइक बियॉन्ड क्लास 12 भी अगर आपने कुछ पढ़ाई किए हैं, तो उन लोगों के लिए 50% उतना मैटर नहीं करता है बिकॉज आपके पास कुछ हायर डिग्री भी है. लेकिन जो कैंडिडेट सिर्फ क्लास 12 पास करके इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों को मिनिमम 50% सिक्योर करना ही पड़ेगा. If you are applying for the post of accounts clerk cum typist, then you should be having a class 12th pass certificate or some equivalent certificate with not less than 50% marks in the aggregate. And 50% marks are not to be insisted upon in the case of SC/ST or persons with benchmark disability or ex-servicemen and candidates who possess qualifications higher than 12th. Typing proficiency is mandatory in English and in Hindi in the computer, which is very much essential. And if you apply for the post of junior clerk cum typist, you will have to fulfill the same conditions. For junior timekeeper, you will have to fulfill the same conditions. For the trains clerk also, same conditions you have to fulfill. So what is the minimum qualification required here for these 4 posts is that you have to complete class 12th examination and minimum 50% आपको secure करना ही है. And जो candidates graduation complete कर चुके हैं and they want to apply in one of these posts or in all of these posts, then it is not mandatory that you should be having a 50%. अगर in case आपका graduation degree है and आप क्लास 12th में बाई चांस अगर 50% से कम लाए थे, then also you have the chance of applying to these examinations, to these posts. लेकिन अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास सिर्फ क्लास 12 का सर्टिफिकेट है एंड जिन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हैं, देन योर 50% मार्क्स विल बी चेक्ड. नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे. पहला जो स्टेप है जो हमें फॉलो करना है वो है कि हमें ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करना है. जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि indianrailways.gov.in जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको आपको विज़िट करना है ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पता चले. दूसरा जो स्टेप है जो आपको फॉलो करना है वो है कि आपको रिक्रूटमेंट जो टैब है, रिक्रूटमेंट्स का जो टैब है उसमें आपको क्लिक करना है. होम पेज में जाके, ऑफिशियल वेबसाइट का जो होम पेज है वहाँ पे जाके आपको रिक्रूटमेंट्स टैब में क्लिक करना है. स्टेप 3 में आप लोगों को आरआरबी को चूज़ करना है एज़ पर योर स्टेट. नाउ नेक्स्ट कैंडिडेट को एक ऑफिशियल वेबसाइट के एक स्पेसिफिक पेज में डायरेक्ट किया जाएगा जहाँ पे आप लोगों को स्टेट और जोन चूज़ करना है. स्टेप 5 में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना है एंड स्टेप 6 में आपको अपना खुद का आरआरबी का जोन चूज़ करना है. यू हैव टू चूज़ द आरआरबी जोन, लाइक इट कैन बी ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, नॉर्थ वेस्टर्न जोन, साउथ ईस्टर्न जोन, for which you are willing to apply. Next step is to enter all your educational qualification details and the community you belong to. Step 8, you have to click on the check availability button
Then in step 9, you have to fill up the registration form by filling up the details like name, date of birth, Aadhaar card number, then father's name, mother's name, class 10th details, that is your roll number and your registration number, then your mobile number and email address, email ID. Now mobile number and email ID आपको ऐसे देना है जो चालू रहता है at least for the next 1 year, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट डिटेल्स चाहे वो वेबसाइट का लिंक हो, चाहे वो डाउनलोडिंग का कुछ लिंक हो, या फिर एग्जामिनेशन का जो रिपोर्टिंग टाइम, या फिर कौन सी डेट में कहाँ पे, सभी चीज़ों का डिटेल्स या फिर लिंक आपको मोबाइल नंबर में और आपके ईमेल आईडी में ही पहुंचाया जाएगा। स्टेप 10, आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है स्टेप 11, जहाँ पे आप लोगों को एक OTP भेजा जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में और आपके फ़ोन नंबर पे ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। Now step 12, you have to log in once again with your username and your password and fill up the application form by entering the details such as marks obtained in the class 12th examination, your community, your group, your gender, your nationality, your religion, and all the other things which are required to be fulfilled, which are mandatory to be fulfilled. नेक्स्ट आप लोगों को सेव बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट करना है। देन यू हैव टू अपलोड योर फोटोग्राफ एंड योर सिग्नेचर, और वो भी स्कैन्ड होना चाहिए, बोथ फोटोग्राफ एज वेल एज योर सिग्नेचर। एंड साइज़ आपको बोल दिया जाएगा कि कितने साइज़ के अंदर आपको स्कैन करना है। एंड लास्ट में आपको फाइनल सबमिशन करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म का। फाइनल सबमिशन करने से पहले और एक बार देख लीजिए, क्योंकि एडिट करने का और कोई मौका नहीं मिलेगा। Next, we are going to talk about the admit card, which you are going to receive 1 week before your examination. And in that, you will get to see that your name is written, your date of birth is written. You will have your photograph and your signature on it. Then there would be a registration number given to you. आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर का नाम देख पाएंगे, डेट ऑफ एग्जामिनेशन देख पाएंगे, आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर का नाम देख पाएंगे, डेट ऑफ द एग्जामिनेशन आप देख पाएंगे, देन रिपोर्टिंग टाइम क्या है वो आप देख पाएंगे कि कौन से टाइम के अंदर आपको जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, दैट्स द रिपोर्टिंग टाइम, वो आप देख पाएंगे, वहाँ पे लिखा होगा एडमिट कार्ड में। देन एग्जाम के दिन में क्या क्या आपको फॉलो करना है वो भी एडमिट कार्ड में ही लिखा होगा। सो यू नीड टू फॉलो द इंटायर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के सामने वाला पेज में ये सभी डिटेल्स दिया जाएगा, एंड एट द बैक यू विल बी बाउंड टू फॉलो सर्टेन रूल्स जो आपको एडमिट कार्ड में ही मिल जाएगा। डू रीड ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल. So if you really want to give this examination and achieve good qualifying marks and go over to the next round, then you need a better strategic planned preparation. और ये planned preparation आपको सौरभ सर क्लासेस के मेंटर और कोच प्रोवाइड करेंगे। हमारे यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स हम प्रोवाइड करते हैं कैंडिडेट्स को, एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड लाइव क्लासेस, रेगुलर क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस, and we also provide doubt clearing classes, revision classes, and scholarship facilities and crash course facilities too. And let me tell you, जो भी कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पे एनरोल करते हैं, हम उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की पोर्टल एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज 24/7 पोर्टल एक्सेस हम प्रोवाइड करते हैं उनको, एंड दे कैन व्यू दोज लेक्चर्स एनी टाइम एंड एज मेनी टाइम एज दे वांट. मॉक टेस्ट्स आर मैंडेटरी बिकॉज मॉक टेस्ट्स हमें एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट कैसा होता है उसका फील देता है, एंड रियली कैंडिडेट्स नीड टू नो हाउ द एग्जाम एनवायरनमेंट फील्स लाइक. कौन से स्टिप्यूलेटेड टाइम के अंदर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर ख़त्म करना है, कितने टाइम है आपके पास, आप लोग कैसे एग्जामिनेशन को देंगे, उन सभी का एक मॉक टेस्ट आपको देना है. तो अगर आपको मॉक टेस्ट्स भी देना है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल इन आवर क्लासेस बिकॉज वी वांट टू सी हाउ मच यू आर प्रिपेयरिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर टीचर्स. So that was all about our classes, and that was in the entire 2022 notification discussion. So that was all for today's class. We are going to meet once again in our next classes.